हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट कोड इट विद सार्थक। आज काफ़ी अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए एक अलग ही टॉपिक पे। दिस इज़ नॉट अ कन्वेंशनल वीडियो। सो बहुत सी बार बच्चों को एक डाउट होता है कि हमने जिस वे में स्टार्ट करी कोडिंग ऑन सम आईडी, सम इंटेलिजेंट आईडी और सम काइंड ऑफ अ वेरी डिफरेंट और हेल्पफुल कोड एडिटर, वहाँ पे अल्टीमेटली क्या चीज़ें होती हैं एंड देन they move towards a text editor kind of thing like VS Code or Notepad or something like that. I would say यहाँ पे क्या चीज़ें डिफरेंस होती हैं. We will be trying to disclose these things. We will be discussing the different nuances, how you should practice or how you should move towards, what are the best way to move forward with, and what to do, when to do with that. So काफ़ी अच्छा comprehensive discussion करेंगे over IDs and code editor, text editors. So where should you code, how to find what is the best perfect way to move forward with it, and we will be discussing a lot of things in detail. So before starting with the video, let's thank the supporter of this channel, Newton School. So guys, what is Newton School? Newton School एक edtech startup है जहाँ पे you can learn more about different technologies out there. They will help you get job offers from these top tech companies. एंड उनका एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको ₹1 भी पे नहीं करना है जब तक आपके इन कंपनीज में जॉब नहीं लग जाता. दे हैव वेरी गुड ऑफरिंग्स विद दिस कोर्स, लाइव क्लासेस, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज एंड पर्सनल मेंटरिंग. I will put the link in the description and I suggest you all to check this out and explore their courses. So guys, अब हम मूव करेंगे with first part discussing ID. So what is an ID? ID is an integrated development environment. वहाँ पे आप कोड करते टाइम it gives you an development environment where you can code in the best way possible. It helps you with some textual suggestions कि आप कोड ऑटो कंप्लीट हो जाता है या यहाँ पे इस लाइन के बाद ये इंडेंटेशन या ये ब्रैकेट होना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट. सो इट्स अ वेरी पावरफुल एडिटर विच हेल्प्स यू अ लॉट. ऑल्सो जब आप कोई कोड को कंपाइल करते हैं या उसको रन करते हैं और कुछ एरर्स आती हैं तो उसका काफ़ी डिस्क्रिप्टिव एरर आपको मिलता है इन कोड एडिटर्स कि व्हाट इज अ पॉसिबल एरर, व्हाट आर द सजेशंस टू फिक्स दैट एरर और फिक्स दैट बग. तो उस वे में काफ़ी इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट होता है. जनरली व्हेन यू बिगिन विद द कोडिंग पार्ट इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज आईडी, क्योंकि आप नए नए होते हो, आपको सारी चीज़ें नहीं ग्रास्प है, तो आपको बाकी सारी चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़े, बाकी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी पड़े. यू कैन स्टार्ट इजीली विद द कोड एडिटर, द आईडी, and you can move forward in the learning part. So learning part mein you have to think like you cannot know everything at one time, so you have to leave a lot of things to the ID that can take care of it, handle it itself, and you have to do like focus on the learning part, and you can easily write that code in best way possible. So इसीलिए ID exist करता है. Famous ones are IG, IntelliJ ID, or you might have seen something like NetBeans. तो यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, वो आपको ऑटोमेटिक हेल्प करते हैं, वो सारी चीज़ें खुद से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, एंड दे आर वेरी गुड एट इट. दे सॉल्व द पर्पस इन द बेस्ट वे पॉसिबल, एंड दे आर वेरी पॉपुलर अमंग्स बिगिनर्स. बट एज यू मूव टूवर्ड्स, you try to switch toward text editors because they are more real life situation. I will explain the video like how why it is more real life or why it is more like a pro like a thing. क्योंकि as you progress in your career, as you progress in your coding journey, you have gained that experience, you have learned a lot of things, you have known about what are the various things that are part of your coding journey. तो आप टेक्स्ट एडिटर की तरफ मूव करते हो. इफ यू हैव नॉट मूव्ड इट येट, प्लीज मेक अ स्विच बिकॉज उसके भी वैलिड रीजंस है. बट यू मूव टुवर्ड्स द टेक्स्ट एडिटर पार्ट ऑफ इट एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट इन दैट पार्ट, क्योंकि आप ऑटो कंप्लीट पर आपको रिलाई नहीं करना पड़ता, आप अपनी थिंकिंग यूज कर रहे होते हो, आपको एरर्स एक्चुअल नेचुरल फॉर्म में एरर्स मिलते हैं, एंड अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स हेल्प यू इन दैट वे. बहुत सारे सजेशंस आपको नहीं आते, आपको यहाँ पे बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ कोड करना पड़ता है. आई नो इट्स अ हार्ड वे, बट यही एक प्रैक्टिस वे होता है. सो व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू क्लियर एन इंटरव्यू, उससे पहले एक कोडिंग राउंड होता है. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सम सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब, आपका ऐसे कोडिंग राउंड होता है, आपको टेस्ट लिंक दिया जाता है, एंड एट दैट टेस्ट लिंक you are not given an ID, you are given a text editor to solve your codes, like to answer your code. तो वहाँ पे जब आप कोड लिखते हो तो आपको आदत होती है आईडी की कि भाई आईडी में ऑटो कंप्लीट था, ऑटो टाइप था, सब सारे सजेशंस थे, मैं सारे फंक्शंस का हेल्प देख सकता था. वो वाली हैबिट वहाँ पे काफ़ी पेनफुल हो जाती है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट सिंटेक्स, आपको एग्जैक्ट चीज़ें फॉर्मेट याद नहीं आ रहा है. वहाँ पे आपको काफ़ी दैट्स वाई इट्स अ राइट मूव टू मेक अ स्विच फ्रॉम आईडी टू टेक्स्ट एडिटर. थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, थोड़ा सा लर्निंग चाहिए होता है, बट इट विल बी हेल्पफुल इन द लॉन्गर टर्म्स, क्योंकि आप टेक्स्ट एडिटर पे वर्क कर रहे होते हैं. अल्टीमेटली यू गेट द
एरर कोड्स इन द नेचुरल वे की जो एक्चुअल एरर था उसका कोई कन्वर्टेड वे नहीं होता जैसे आईडी में आपको शो होता है जनरली. You get that actual feel of coding. You have to write it yourself, you have to optimize it yourself and all those things. Also जितने भी इंटरव्यू लाइक आई हैव आस्क्ड लॉट ऑफ पीपल हु हैव टोल्ड मी दैट कि वहाँ पे इंटरव्यूज में भी दे आस्क यू टू राइट अ कोड एंड जनरली दे आस्क यू टू ओपन अ नोटपैड काइंड ऑफ थिंग और VS कोड काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे यू डोंट हैव मच ऑफ दैट आईडी और इंटेलिजेंस इन दैट बिल्ट इन. सो आपको खुद से वहाँ टाइप इन करना है, आपको इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना है, आपको कोड का भी ध्यान रखना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एवरीथिंग. उसकी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से टू क्लियर दोज इंटरव्यूज यू नीड अ गुड कमांड ऑन टेक्स्ट एडिटर दिस वे. So for that, I recommend to make a good switch to a text editor and use text editor when you have learned a lot of things, you have covered the basics or fundamental part of your coding journey. Make a switch to text editor. They are naturally more helpful. But anyway, I would recommend IDE for those people who are just beginning their journey in coding. क्योंकि ultimately आपको begin करने के लिए एक push चाहिए होता है. That pedestal is provided by the IDE. But after a long time, you need that assistance कि मैं टेक्स्ट एडिटर पे वो कोड लिखूं और टेक्स्ट एडिटर पे वो ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट करें विच विल हेल्प यू क्रैक दोस कॉन्टेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट विच इंटरव्यूज एंड ऑल्सो इन सम कंपनीज दे डोंट हैव दैट आईडी ऑल्सो फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. वहाँ पे इंजीनियरिंग टीम्स यूज अ टेक्स्ट एडिटर VS कोड काइंड ऑफ एडिटर. वो VS कोड की आपको प्रैक्टिस वहीं से बिल्ट इन हो जाएगी तो आपको कंपनी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी जॉब करते टाइम कि यहाँ पे इंटेलिजेंट आईडी नहीं है मेरे पास, मैं कैसे कोड करूँगा. सो समथिंग लाइक इट विल नॉट बी एन एब्रप्ट एक्सपीरियंस. वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होगा. So easily I can recommend you to try to move towards text editor and use that for your daily purposes. Practice as much as coding on that purpose, solve problems on that, try to optimize on that as well. So आपकी एक habit build हो जाएगी and you will be able to do that. Try to compile your code with use of terminal commands आपको याद हो जाएंगे. अगर like it could be asked in interviews like what is the terminal command for that. People generally click on that run button on ID और उनका रन हो जाता है प्रोग्राम. They don't know the terminal command how to run program via Notepad file. तो इस point of view से I would recommend कि try to make a switch to a text editor. Try to code as much as possible. If you can make a smooth transition, what would be the ideal way? Move on ID. Then you can use something like a VS Code. Because VS Code where you have plugins involved, you can install them and you can uninstall them as and when required. So I generally use VS Code for my projects as well. But eventually you need more practice for text editor like Notepad, जहाँ पे आपको एक अच्छे से grasp हो जाए. I hope I am able to transfer this information to you. And with this, we come to the end of this video. I hope you all able to gain some insightful knowledge about IDE and text editors and why are they important. I will try to put some link of famous text editors and IDs in the description box below. And अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स who are pursuing and aspiring software developers. और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और कैसी वीडियोस चाहिए और कौन से टॉपिक्स पर आप डिस्कशन चाहते हैं. व्हाट आर द वे दैट आई कैन improve and bring a lot of content for you guys. So thank you so much for supporting this channel. I take leave. Bye bye.